Hello aspirants, welcome to CGB Mentors. I hope you all are doing great and your studies are going very well. My name is Sonika Seni. So today our video is all about agriculture census and we are going to do the entire agriculture census via MCQs. Okay? So before I proceed, I want to intimate to you that this is our report series specifically for NABARD. Okay? And if it is affiliated to other examinations and if it helps, तो obviously आप देख सकते हैं. So this is our second video regarding our reports MCQ series. The very first one was BAHS 2025, that is Basic Animal Husbandry Statistics. So you can go and watch. तो छोटी छोटी videos बनाएंगे for maximum 20 minutes. You can watch at speed whenever you want and we'll try to learn and cram in the class itself. यही हमारा मोटो होगा. जैसे कि हमने BAHS किया था उसमें काफ़ी सारे mnemonics बनाए थे. तो चलिए. So we will be covering the basics also, the content also via MCQs. Let's start our class for the agriculture census. Agriculture census is released after how many years and the latest census 1516 is which in the series. तो आपको पता होना चाहिए that it is which in the series. तो आंसर तो देखो visible है but we will read it out that every 5 years. ठीक है सो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा बेसिक है कि एवरी 5 years एग्रीकल्चर सेंसस इज बीइंग रिलीज्ड. सेकंड थिंग व्हिच यू मस्ट बी अवेयर दैट अभी आपका जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर सेंसस है वो 2016 के ईयर का रिलीज हुआ है एंड दैट इज 10th इन द सीरीज. तो याद रहेगा 5 years डबल कर दो 10 व्हिच मींस द लेटेस्ट वन इज इन द 10th इन द सीरीज जिसके लिए 11th के लिए क्या चल रहा है डेटा कलेक्शन चल रहा है. ठीक है सो ये आप पढ़ लेना. ठीक है क्या है कि देखिए एग्रीकल्चर सेंसस हर 5 years में होता है. द लेटेस्ट वन इज 10th, 11th इज वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ द व्हाट कोविड. बिकॉज ऑफ द कोविड सो व्हाट विल हैपन हमारा जो अभी जो एग्रीकल्चर सेंसस आएगा 16 है ना. तो अभी उसमें 5 years अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 2021 2022 के लिए क्या आएगा आपका इट इज इन प्रोग्रेस, इट इज नॉट येट बीइंग रिलीज्ड. तो आपको पता ये भी पता होना चाहिए कि 11th इज इन द व्हाट सीरीज. नाउ ऑपरेशनल होल्डिंग्स. अब देखो ये थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशंस है. हाउएवर नो वन इज गोइंग टू आस्क यू बट व्हेन वी विल डू द क्वेश्चंस यू मस्ट बी अवेयर दैट व्हाट इज ऑपरेशनल होल्डिंग एंड व्हाट इज ऑपरेशनल होल्डर. ठीक है थोड़ा सा बेसिक है पढ़ेंगे इसको कि ऑल लैंड व्हिच इज यूज्ड ठीक है wholly or partially for agriculture production and is operated as one technical unit by one person alone or with others with regard to it without regard to the title, without regard to the size or locations, right? So what happened, let's say for example there is a village and let's say I have us village mein let's say I have two lands. One is like let's say it's a distance of 5 kilometers, right? And I'm holding it, right? I'm holding it. So that means this will be regarded as one operational land holding only, right? This will be regarded as one operational land holding. That's what it is used. And the basic criteria that is required is that this is being used for what? Agriculture. Either wholly, let's say I have not used it. Let's say it's 1 hectare, but I have used half for my cultivation, but half is not being used. So wholly or partially, it is worst thing, wholly or partially for the agricultural lands. The second thing that it is considered as one technical unit by one person without regard to the title कि वो किसके नाम पे है वो नहीं है. ठीक है but without regard to legal form, size और location, कितना size है कितना location है वो नहीं, बस वो एक operational land holding माना जाएगा, right? अगर वो operational land holding is in the name of one person then क्या होगा operational holder. यहाँ पे criteria is being defined by lands. What holder जहाँ पे आ गया that means criteria is being defined by person, right? So is a person who has the, let me just clear this out, is a person who has the responsibility for the operation of the agriculture holding and who is exercising this initiative. So who is exercising is that person is known as operational holder. Why are we doing it? क्या कोई पूछेगा? नहीं. But there will be certain questions regarding to it so that आपको समझ में आना चाहिए कि कई बात क्या हो रही है. Now, as per agriculture census 16, small farmers are those farmers ठीक है ये रिपीट हो गया who have the operational holdings of how many hectares. Now this is a very common question, कहीं पर भी पूछ लेते हैं, be it any regulatory body examination, हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है and not only as per the agriculture census but it is a common definition. So you must be aware that small farmers are those farmers which are having less than in the 1 to 2 hectares, right? So the answer would be B. अब हमें ये रट लेना है चाहे कुछ भी हो जाए. तो कैसे याद रखेंगे? First of all, we'll see there is farmers who have less than 1 hectare. Farmers who are having less than 1 hectare, they are known as marginal farmers. तो आपको याद रखना है 1 hectare वाले marginal farmers हैं, less than 1. So 1, the range increases, that is 1 and 2.
So the farmer becomes small. That means small farmers have more lands than the marginal. And sometimes question can also come in this way that small and marginal farmers are those farmers who are having what? Then the answer would be small and marginal farmers are those farmers who are having less than 2 hectares, right? Because we have to combine these limits 0 to 1, 1 to 2. Okay, चलिए फिर आप लर्न कीजिए सेमी मीडियम और मीडियम, right? That is 2 to 4 is semi medium and 4 to 10 is medium. Now combined question can also come. Combined question कैसे आएगा? That who are medium farmers? Then you have to write that farmers having 2 to 10 hectares are known as medium farmers. ओहो ठीक है, farmers having 2 to 10 hectares they are known as medium farmers. So याद रहेगा less than 1 is marginal, 1 to 2 is small. After that 2 to 10 is medium. Separate करोगे तो 2 to 4 and 4 to 10 is semi medium and medium. It means large farmers are those who are having more than 10 hectares and this is a static definition. हर बार यही definition आपकी रहती है, ठीक है, हमारा क्लासिफिकेशन है ये इंडिया का. चलिए now small farmers, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स मतलब लेस देन व्हाट 1 to 2 हेक्टेयर 1 to 2 हेक्टेयर, सिर्फ स्मॉल फार्मर्स की यहाँ बात हो रही है. कॉन्स्टिट्यूटेड व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल लैंड होल्डिंग्स, राइट, यानी कि कितने लैंड होल्डिंग्स है. देखो एक बात तो आपको पता ही है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैव अप्रॉक्सीमेटली 85% ऑफ द लैंड्स, ठीक है, मतलब कि 85% आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. तो यहाँ पे स्मॉल क्या है 17.62%, right? Small farmers are 17.62%. It means सबसे ज़्यादा percentage of farmers falls into the category of small farmers. What does that mean? It means that 68% of the people, or you can say the farmers in India are having, right? Farmers in India are having less than 1 hectare of the land, and who are in the range of 1 to 2 hectares is 17.62, right? आपको याद रखना है 68 and 17, and when you combine both approximately आपका निकल जाएगा कितना 86, ठीक है, 85-86% जो भी आप जैसे भी आप इसको करना चाहेंगे, ठीक है. यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि मोर देन 85%, क्योंकि ये यहाँ से आपका जो कैरी ओवर जो भी है मोर देन 85 to 86% फॉल्स इनटू द विच कैटेगरी मार्जिनल एंड स्मॉल, और यहीं से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है. पढ़ने के लिए आप ये भी पढ़ सकते हो कि हमारा जो सेमी मीडियम और मीडियम है या इसको कंबाइन कर दो, इट इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट 13%, राइट, एंड लार्ज इज जस्ट हाफ परसेंट, just half percent. However, question can come either small and marginal farmer combined. Marginal ज्यादा है, याद रखो 68 and small is 17. ठीक है, चलिए. Now we have done the definition, है ना, small and marginal की. Then we have done what? The percentage of holdings. चलिए. Now, what is the all India average size holding as per agriculture census? अब ये तो हो गया कि चलो, if we divide what the total number of operational holdings with the operational holders, तो हमें समझ में आएगा कि एक farmer is holding how much average land holding, and that is 1.08 hectare. मैम इतना कम कैसे कम है? बिकॉज आपको सोचिए that 86% are small and marginal farmers and large farmers, that means more than 10 hectares is having just 0.5%. इसका मतलब farmers are more, है ना, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर मोर, सो डिविजिबिलिटी रूल तो यही होता है ना, डिनोमिनेटर कम होता है. सो इट इज 1.08 हेक्टेयर. मैथ्स में मत जाना, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दिया. सो 1.08 हेक्टेयर अगर आपसे कोई पूछे, दैट इज द एवरेज लैंड होल्डिंग बाय पर पर्सन, ठीक है, 1.08. ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यू कैन यूज इट इन योर डिस्क्रिप्टिव आंसर ऑल्सो, ठीक है. चलिए ये पढ़ लो. What is the percentage increase in the total number of operational holdings in the country as per agriculture census? ठीक है मैम, ऑपरेशनल होल्डिंग्स कैसे इंक्रीज होगी? लैंड तो लिमिटेड रिसोर्स है, लैंड तो स्टेबल ही रहेगा, ठीक है. आप खुद सोचो. नाउ देयर इज अ वन पर्सन, दे हैव 2 kids 1 and 2. This one person has again 2 kids 1 and 2. So land is limited but the holders are increasing. So can I say that जो हमारे operational holdings है, they are also on the increasing path. Why? In India the small and fragmented farmers are there, and because of the nuclear families what is happening that जो operational land holdings है that keeps on increasing. So that means holding जो हमारी क्या हो रही है, increase हो रही है. Increase in the total number of operational holdings as per agriculture census. So the increase is 5.86%. ठीक है. So increase in the operational land holdings is 5.86%. ठीक है. तो क्या किया हमने? We have done about size of small, है ना, marginal, medium and large. Then we have done कि 86% are small and marginal farmers, 17% are small, ठीक है, and 68% are what? Marginal. Then we have done about 1.08 हेक्टेयर जो क्या है हमारा एवरेज
साइज होल्डिंग है एंड हमारा जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स है वो 5.8% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसके जो भी स्टैटिक का पार्ट है हम पढ़ेंगे अभी। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स, नाउ ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं इसका आंसर लिखना भूल गई, इट इज यूपी। यूपी फॉलोड बाय बिहार हैज द हाईएस्ट ऑपरेशनल होल्डिंग्स, विच मीन्स यहाँ पे जो होल्डिंग्स है दैट मीन्स द लैंड्स के जो डिविजन है वो ज्यादा है। आपको सोचिए बड़ा स्टेट है, बहुत सारे लोग हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन हाई है, तो दैट इज वाई आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि पॉपुलेशन हाई है, इट मीन्स द लैंड इज बीइंग डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, व्हिच मीन्स यू कैन cram in this way also, that means UP and Bihar has the highest number of what operational holdings, and to which हमारा ये लैंड का एरिया हो गया, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग्स, एरिया नहीं है सॉरी, ये होल्डिंग्स है, दैट इज 146 मिलियन, याद रहेगा तो ठीक है। अदरवाइज परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 5.8%, एंड यूपी फॉलोड बाय बिहार एज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स एज पर एग्रीकल्चर सेंसस 16। चलिए, नाउ दिस इज टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आफ्टर दैट स्मॉल एंड मार्जिनल वाली जो दो क्वेश्चंस करे थे, एवरेज वाले जो तीसरा क्वेश्चन किया था, फोर्थ क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, the percentage of female operational holders has increased from 12.7% in 2011 to which, क्योंकि 5 साल का गैप है ना, to 2016 to what? Now this you can use in any kind of what descriptive also, let's say feminization of agriculture जो I think अभी RBI में भी आया था। So in वुमेन पर्सपेक्टिव से जब आप एग्रीकल्चर करोगे आपको पता होना चाहिए दैट 13.9, हाउ मच, 13.9% are the operational land holdings are holded by women farmers, ठीक है, women farmers 13.96. Now these are the three statistics which you have to learn from the point of view for women. The very important statistic is this, that 13.9 of total operational land holdings are operated by women, ठीक है, that is being operated by women, whereas 30% of total cultivators are women, यानी कि let's say अगर there are 100 cultivators उसमें 30 cultivators women है, ठीक है, ये कल्टिवेटर्स है, ठीक है, बट ये क्या है, ऑपरेशन होल्डिंग्स व्हिच इज इन देयर, लेट्स से इन देयर नेम्स, whereas female operated area is 11.5%. now what is the difference between holdings and this, यहाँ पे बात हो रही है ऑपरेशनल होल्डिंग्स लैंड वाइज, क्या किया था हमने, लैंड दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर पार्शियली और होली एज एन एग्रीकल्चर एज अ यूनिट, ठीक है, कि भाई हमने बहुत सारे होल्डिंग्स को लेट्स से कंबाइन कर दिया है, लेट्स से इन अ विलेज देयर 4-5, बट ऑपरेटेड एरिया का मतलब क्या हुआ कि भाई दे आर इनटू ऑपरेशंस, ऑपरेटेड एरिया का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो नॉन कल्टिवेबल लैंड्स होते हैं वो भी इसमें मतलब आ जाते हैं, लेकिन ऑपरेशनल होल्डिंग्स में देयर आर कल्टिवेबल, तो ये आपका ऑपरेटेड एरिया हुआ। हाउएवर दिस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट, पूछेंगे तो ऑपरेशनल होल्डिंग्स पूछेंगे, आपको लिखना है 13.9 प्लस 30%, यू कैन यूज दिस इन द डिस्क्रिप्टिव, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको ये वाला क्रैम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर पॉपुलेशन सेंसस, नाउ दिस वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन सेंसस, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन सेंसस का कुछ डेटा है ना एग्रीकल्चर सेंसस में यूज किया गया था, तो पॉपुलेशन सेंसस पढ़ लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस ही हैं, दैट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स इन टोटल वर्कफोर्स। अब ये तो बहुत ही ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछा जाता है, एवरी टाइम वी नो दैट अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ आवर टोटल वर्कफोर्स इन आवर कंट्री बिलोंग्स टू व्हाट, एग्रीकल्चर, दिस इज एज पर 2011, अभी कम हो गया है, ठीक है ना, अभी कम हो गया है, बट अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज एज पर द पॉपुलेशन सेंसस 11, इट इज 54, दैट मीन्स 54.6 और 55, ठीक है, यही लिखा हुआ है। चलिए, एज पर पॉपुलेशन सेंसस इंडियाज परसेंटेज डेसिडल यानी कि 10 years growth in the period of 2001 and this, so that means they are saying that in this 10 years what is the growth rate of our population, and answer visible हो ही रहा है, that is 17.6%, that means the growth rate in India population is 17.6%, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद थोड़ा स्टैटिक पढ़ेंगे, तो ये आप देख लो, दिस इज एज पर द पॉपुलेशन सेंसस दैट पर स्क्वायर किलोमीटर 382 पर्सन्स आर लिविंग इट, हाउएवर सेक्स रेशियो इज 9:3, ठीक है, 68% पीपल आर लिविंग इन द रूरल एरियाज, आप इसको डिस्क्रिप्टिव में लर्न कर सकते हैं, दैट मीन्स 70% पीपल आर लिविंग इन द रूरल एरियाज एज पर पॉपुलेशन सेंसस, हाउएवर इट हैज बीन चेंज्ड नाउ, तो ये बात अब ये मत सोचना मैम इतना थोड़ी है, ऐसे कम हो गया है, ठीक है। सो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव लॉन्च नेशनल प्रोग्राम फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब क्या है, फैमिली प्लानिंग, सॉरी गलत बोल दिया, ठीक है, दिस फैमिली प्लानिंग। चलिए ये देख लेना आप क्या है, सेंसस 2027 होगा, दैट विल बी 16 सेंसस इन द सीरीज, ठीक है। चलिए
Now, out of these, we have done 3 questions, 8, 9, 10 for the population census. This question is very important. It says that as per the population census, that SCs constitutes for how much percentage of the population and STs constitute how much percentage of the population. And it is very easy to remember. 16.6 are the SCs. इसका half कर दो. 8.6 is the STs. 16 का half करोगे क्या हो जाएगा? 8.6. तो answer would be D. ठीक है, चलिए अब लेट्स रीड थोड़ा सा बेसिक, ठीक है, और जो जो फैक्ट्स हमारे रह गए हैं वो हम फटाफट से कवर कर लेंगे। सो एग्रीकल्चर सेंसस इज, अच्छा एक तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, आप मार्केटिंग सीजन्स पढ़ेंगे, आप राबी सीजन मार्केटिंग और जब भी एमएसपी रिलीज होता है, यू मस्ट बी अवेयर जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ना, मार्च अप्रैल पढ़ते हैं, ठीक है, इसी तरीके से अप्रैल मार्च पढ़ते हैं जो भी है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक रहता है। इसी तरीके से हमारा जो एग्रीकल्चर ईयर है इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, दे कैन आस्क यू दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जून। ये आपको पता होना चाहिए। हम जो भी कैलकुलेशंस करते हैं इसको माइंड में रख के करते हैं। तो सपोज अगर मेरा एक एनुअल ईयर का लेट्स से एनुअली कोई डेटा आता है तो हमारा जो अगर उन्होंने बोला है दैट इट इज फॉर द एग्रीकल्चर ईयर, इट मीन्स फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जून द डेटा इज फॉर दैट। ये आपको पता होना चाहिए। इट कैन बी आस्क्ड इन फेज 1। चलिए, सो इट सेज दैट अगेन 5 years है, स्टार्टिंग में हुआ था 71 में एंड टिल देन लेटेस्ट इज द 10th दैट इज 15-16, वी हैव ऑलरेडी डन इट। 11th विल बी फॉर 2022। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे काम चल रहा है अप टू ईयर 2026। नाउ दिस इज एग्रीकल्चर सेंसस विच, अब देखो क्या हमने ये नहीं किया है, वी हैव डन इट। मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया है। फॉर द लार्ज इट इज मोर देन 10, फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल इट इज लेस देन 2 hectares कंबाइंड। ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन फॉर द ऑपरेशनल होल्डिंग। एरिया में क्या होता है, कल्टिवेटेड एंड अनकल्टिवेटेड एरिया दोनों होते हैं। ठीक है, कोई वैसे पूछता नहीं है ये चीज, बट आपको पता होना चाहिए एज एन कंसेप्ट। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग्स वी हैव डन इट, राइट, इट इज 1464 लाख। अब मैम इतना कैसे आ गया, बिकॉज वहां पे मिलियन में था। ठीक है, दैट वाज इट वाज 146 मिलियन। चलिए, मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स ये हमने करा था परसेंटेज में, दैट इट इज 68 एंड 17% इज फॉर, बस अब इसका लाख मत याद करना, बस इतना याद रखना, मार्जिनल एंड स्मॉल कंबाइंड इज व्हाट 86, वेयरएज इसका क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है, 68 एंड 17। चलिए, नाउ दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल बोल्ड दिस। क्रॉपिंग इंटेंसिटी एज पर द लेटेस्ट एग्रीकल्चर सेंसस, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज 141 विच इज लो, कोई ज्यादा नहीं है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है, पता होना चाहिए आपको एज पर द स्टैटिक एग्रीकल्चर की क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है। दैट मीन्स एक लैंड को आप बारी बारी एक साल में कितनी बार ग्रो करते हो, दैट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इट इज नॉट इवन 150, नॉट इवन 1.5 टाइम्स, सो इट इज 141%। ओके, चलिए, ये हो चुका है हमारा। स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स दैट इज लेस देन 2 हेक्टेयर कॉन्स्टिट्यूटेड अबाउट 86.08%। ऑल इंडिया एवरेज इज 1.08, so basically we are revising only. Women, we have done this. The most important factor is 13.9. Operational holdings by women is 13.9. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे दैट एज पर द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बेसिकली ये थोड़ा पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे क्या थी, मिक्स थी। जैसे फॉर एग्जांपल दिस ऑपरेशन होल्डिंग्स 146, ठीक है, 5.33% इज द इंक्रीज। ये क्या हुआ, 1 सेकेंड, ठीक है, 5.3% इज द इंक्रीज। अब देखो इसमें क्या याद रखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये तो चलो आपको पता ही होगा, आपको you must be aware in this poverty section that Chhattisgarh is the highest and 21% as per the Tendulkar methodology we have 21% poor। याद करने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा नीति आयोग का एमडीपी के हिसाब से मोस्टली ये लोग पूछते हैं, विच इज 14% नाउ। इसमें क्या याद रखना है आपको, ये विच वी हैव डन इट। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, 5.33% इंक्रीज, 2 था या 1 था, सेकंड था, विच वी हैव डन दिस। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल टेलिंग लैंड क्या किया था ऑपरेशन लैंड होल्डर्स का, यूपी, बिहार एंड थर्ड इज महाराष्ट्र। दिस इज ऑपरेटेड एरिया एंड व्हाट इज ऑपरेटेड एरिया, कल्टिवेटेड एंड अनकल्टिवेटेड। तो यहाँ पे क्या हो गया, राजस्थान पहले आ गया। ठीक है, मैम ऐसे कैसे हुआ, देखो यूपी का पॉपुलेशन ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होगी, लैंड्स ज्यादा फ्रेगमेंटेड होंगे, दैट इज वाई यहाँ पे क्या हो गया, कल्टिवेट, ये आपका यूपी प्लस बिहार। बट देन यहाँ पे क्या है, लैंड, आपको पता होगा वास्ट एरियाज ऑफ लैंड है, पॉपुलेशन कम है, ठीक है, होल्डर्स कम है, तो क्या हुआ, अनकल्टिवेटेड लैंड भी होगा, तो राजस्थान, ठीक है, देन महाराष्ट्र। आपको हाउएवर ये वाला पॉइंट ज्यादा अच्छे से याद रखना है। तो पूछे अगर ऑपरेटेड एरिया तो राजस्थान भी याद करोगे, इनफ है, इट इज इनफ। चलिए, सो हम वो पॉइंट्स देख रहे हैं जो रिपीटेटिव नहीं है।
ठीक है, आई थिंक वी आर डन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर सेंसस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, यहीं से क्वेश्चंस बारी बारी रिपीट होते रहते हैं, तो यू कैन डू फ्रॉम दिस, राइट? एंड दिस इज एंटायरली कंप्लीट एग्रीकल्चर सेंसस। ऐसे मत सोचना कि इतना सही था, ऐसा थोड़ी होता है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी ब्रिंगिंग लाइफ स्टॉक सेंसस एंड इट इज इंपॉर्टेंट। 2024 फेज 2 में देयर वाज अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ अबाउट 6-7 मार्क्स, पोल्ट्री का पूरा दिया हुआ था, डायरेक्ट फ्रॉम द लाइफ स्टॉक सेंसस, ठीक है? तो thank you so much for watching this session and keep continuing this series from CGB Mentor, Sonika.